So we'll be starting from the embryonic life. During the third week of embryonic development, yolk sac becomes the source of blood formation, but only transiently. It is actually a long-term source of tissue macrophages like microglia cells in brain and Kupffer cells in liver. But yes, it starts the process of blood formation even if only transiently during the third week of development. Now, few weeks later, in the mesoderm of the intraembryonic aorta or gonads or mesonephros region, there are definitive hematopoietic stem cells formed. And hematopoietic stem cells have two capacities. Pluripotency, that is, they have the capacity to divide into all types of blood cells. They can turn into all types of blood cells. The second capacity they have is self-renewal. That is, whenever a hematopoietic stem cell divides, one daughter cell may go to the committed lineage and may become differentiated towards a certain type of blood cell, but the other one does retain the capacity of self-renewal, because if that the other cell is not retaining that capacity, the stem cell depletion will occur. Now, the third month of embryogenesis is where the liver becomes the chief site of blood cell formation until after or just before or after birth, around birth. Liver remains as the source of blood cell formation in the entire pregnancy, starting from the third month of embryogenesis shortly before birth. Okay, till that time. And fourth month of development is where hematopoietic stem cells are also shifting to the bone marrow, because after the child is born, it is the bones, the marrow space in every bone, which is going to produce blood cells. So we need the hematopoietic stem cells to shift into the bone marrow from fourth month onwards. Now, at birth, it is the entire skeletal system which is hematopoietically active, that is, which is synthesizing your blood cells. And hematopoiesis has ceased at this point. But after puberty, hematopoiesis ceases also in distal bones, and it is only few axial skeletal bones which are responsible for hematopoiesis. So in normal adults, it's not all of the marrow space in all the bones which is hematopoietically active. So summarizing this, in embryonic life till the third week, yolk sac is the source of is the site of hematopoiesis. Then up to third month, it is the liver. During the fourth month, bone marrow is the site of hematopoiesis. Now at birth, bone marrow is virtually the sole source of blood cells, and all the bone marrow is red and hematopoietically active in a child. But after puberty or around that age, it's only axial skeleton, which is vertebrae, ribs, sternum, skull, pelvis, and proximal epiphyseal regions of humerus and femur. Alright, so these are the sites of hematopoiesis in an adult. So we are just reading how hematopoietic stem cells form all the red blood cells and the white blood cells and platelets. So hematopoietic stem cells first divide into early progenitor cells. These are cells with some restricted differentiation potential. They can still have a wide variety of options to convert into, but it is not as much as a proper hematopoietic stem cells. So their differentiation potential is much less compared to the hematopoietic stem cell. These cells will then convert into myeloid cells or lymphoid cells. These early progenitors then are basically becoming progenitors along the way, and they are becoming more and more constrained in the differentiation potential. And these cells are sometimes referred to as colony forming units. Then we have morphologically recognizable precursors, that is the precursors which you can see in bone marrow, such as, or in abnormal conditions as well, such as myeloblast, which will form your mature granulocytes, proerythroblast, which will form your red blood cells, and megakaryoblast, which will form your platelets. Now, as I said, hematopoietic stem cells have two capacities. That is, they are pluripotent and they have self-renewal. Alright, now the hematopoietic stem cell is converting into a multipotent progenitor, and they also have the capacity of self-renewal, obviously. That is, one daughter cell is always becoming hematopoietic stem cells. One daughter cell, so every time a cell divides, there are two daughter cells, right? So one daughter cell is becoming hematopoietic stem cell again, and hence self-renewal is maintained, because the other one is becoming committed to a certain lineage. Now these committed precursors are formed from this multipotent progenitor.
So this multipotent progenitor means it still has the capacity to divide into into many forms of cells, but not as much as the hematopoietic stem cell. The differentiation here is restricted. Now this cell becomes the forms the committed precursors, and we have two precursors, lymphoid precursors and myeloid precursors. These are the two main lineages that you have. लिम्फॉइड का तो नाम में ही है कि इससे लिम्फोसाइट्स आएंगे, और एनके सेल्स क्योंकि लिम्फोसाइट्स जैसे ही होते हैं तो वो भी इसी से आते हैं, लिम्फॉइड प्रिकर्सर्स से आते हैं. और माइलॉइड प्रिकर्सर से बाकी सारे सेल्स आते हैं, दैट इज़ योर रेड ब्लड सेल्स, योर प्लेटलेट्स एंड ऑल WBCs एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स. सो लेट्स सी कि लिम्फॉइड प्रोजेनिटर है जो, उससे प्रो और प्री एनके सेल, बी सेल, टी सेल बन रहे हैं. Whenever there is the term pro और pre, we know कि these are immature forms. तो इनसे फिर mature NK cell और B cell और T cell बनेंगे, और B cell और T cell हमें पता है हमारे lymphocytes हैं. The other flow chart is that of myeloid progenitors. Like I said, except for lymphocytes or NK cells, the rest of the cells in your blood are myeloid origin. Usually people confuse that myeloid origin are only WBCs except for lymphocytes, that all other four WBCs are myeloid origin. No, your RBCs and megakaryocytes, which are forming platelets, are also myeloid origin cells. So you have colony forming unit, which is mixed bunch, that is, it is forming CFU-G and CFU-M and CFU-E-O, and they are forming the precursors of mature cells. And then you have CFU-B, M or E, that is basophil, megakaryocytic or eosinophilic CFU, and these colony forming units are forming precursors of mature cells again. Now let's look at the precursors these are forming. So CFU-G is forming your myeloblast, and that is forming mature neutrophil. CFU-M is forming monoblast and monocyte, and similarly eosinophiloblast or basophiloblast और megakaryoblast से अपने अपने फाइनल मेच्योर फॉर्म्स आ रही है, और एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट आ रहा है. बट ये मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म्स हैं, ये जो माइलोब्लास्ट और जो ब्लास्ट हैं, ये दीज आर मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर्स. दैट इज, यू कैन सी देम, एंड स्पेशली इन बोन मैरो, राइट, यू कैन सी दिस प्रिकर्सर्स. बट रिमेंबर दिस कि ब्लास्ट से मेच्योर फॉर्म तक आते आते काफ़ी सारे सेल होते हैं. ब्लास्ट से सीधा न्यूट्रोफिल नहीं बनता, और एरिथ्रोब्लास्ट से सीधा RBC नहीं बनता, और मेगाकेरोब्लास्ट से सीधा प्लेटलेट नहीं बनता. सिमिलरली मोनोब्लास्ट, eosinophiloblaस्ट और बेसोफिलोब्लास्ट से सीधा मेच्योर फॉर्म नहीं बनता. बीच में कुछ और भी प्रिकर्सर्स हैं. बट दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ योर नॉर्मल हेमेटोपोइसिस. नाउ वी नो कि क्या क्या कॉम्पोनेंट हैं हमारे ब्लड के. RBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और लिम्फोसाइट्स. नाउ लेट्स लुक एट प्रिकर्सर, जो मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर से फाइनल मेच्योर फॉर्म कैसे बन रही है. वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. तो फर्स्ट हम पहले करेंगे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर से RBCs का बनना. तो हमें पता है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कमिटेड प्रोजेनिटर बन रहा है. कौन सा? CMP का मतलब है कमिटेड माइलॉइड प्रिकर्सर, एंड देन उससे ग्रैनुलोसाइट माइलॉइड प्रिकर्सर, और आपका मेगाकेरोसिटिक और एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर बन रहा है, GMP और MEP. GMP is your granulocytic myeloid precursor और प्रीजेनिटर, और MEP is your megakaryocytic और एरिथ्रॉइड प्रीजेनिटर. ठीक है, दो तरह के कमिटेड माइलॉइड प्रोजेनिटर भी दो तरह के हैं. एक वो है जिससे ग्रैनुलोसाइट्स ने आना है, यानी कि बाकी बार WBCs ने आना है, और एक वो है जिससे मेगाकेरोसाइट्स और हमारे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स ने आना है. तो जो MEP है, जो शेयर्ड मेगाकेरोसिटिक और एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर है, उससे फाइनल एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन रही है मेगाकेरोसाइट वाली, और उससे अब एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स बन रहे हैं जो हम अब पढ़ेंगे. नाउ लुक एट दिस. फर्स्ट जो हमारी बन रही है वो है बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, जो एरिथ्रॉन भी बोलते हैं जिसे. ये बेसिकली बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट है एरिथ्रॉइड. देन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आई एरिथ्रॉइड की. फिर उससे हमारा जो अब ये जो है स्टेजेस, यू हैव टू रिमेंबर, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, फिर हमारा बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, फिर हमारा पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, एंड फाइनली रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट. इफ़ यू लुक फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट टू ऑर्थोक्रोमेटिक, आपका कलर रेडिश होता जा रहा है ब्लू से, क्योंकि न्यूक्लियस जा रहा है ना, सिर्फ ही साइटोप्लाज्म रह रहा है और हीमोग्लोबिनाइजेशन हो रही है, इसलिए सेल रेड होता जा रहा है और न्यूक्लियर कंटेंट जा रहा है. तो फाइनली हमारा जो एरिथ्रॉइड है, सॉरी एरिथ्रोसाइट है, वो बन रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर. नाउ
तो ब्रीफ में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली क्या हुआ है, एरिथ्रोपोइटिन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो कमिटेड एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स थे वो डिवाइड और डिफरेंशिएट होना शुरू हुए. Pro-erythroblasts then they further go through stages like basophilic or polychromatophilic or orthochromic. And with each step in maturation, the cytoplasm is gaining more hemoglobin. Redness आ रही है, hemoglobinization हो रही है. The nucleus is becoming more pycnotic और cell का size भी कम हो रहा है. At the level of the polychromatic normoblast, सेल डिवीजन सीज कर जाती है और ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट पे सेल का पूरी तरह से जो गंदा पंदा सा न्यूक्लियस है वो भी निकल जाता है और उसके बाद आपका रेटिकुलोसाइट बनता है. रेटिकुलोसाइट मेच्योर आरबीसी से सेम ही है, एक्सेप्ट कि रेटिकुलोसाइट में कुछ पॉलीराइबोसोम्स वगैरह हो सकते हैं और दे ऑल्सो कंटिन्यू टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन. एट दिस स्टेज इट सेल्स यूजली इमर्जेस इनटू द ब्लड और आफ्टर 1 to 2 days इन सर्कुलेशन रेटिकुलोसाइट भी अपना पॉलीराइबोसोम लूज कर देता है एंड इट बिकम्स अ मेच्योर आरबीसी. नाउ ये मैरो की पिक्चर्स हैं. दिस इज शोइंग योर सिंगल प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो कि बेसोफिलिक है. वेन एवर वी नो बेसोफिलिक का मतलब क्या है, ब्लू ब्लू. तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ब्लू है. अभी हीमोग्लोबिनाइजेशन इतनी हुई नहीं है, लेट स्टेजेस में होगी हीमोग्लोबिनाइजेशन तो ज़्यादा. ठीक है, तो न्यूक्लियस में स्टिपल्ड क्रोमैटिन है और 1-2 न्यूक्लियाई भी होते हैं इसमें. साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है इसीलिए इसका नाम बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. फिर उसके बाद आपके अर्ली बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आ रहा है. इसमें सेल लार्ज है और सेल बेसोफिलिक से साइटोप्लाज्म अभी भी है बट थोड़ी बहुत रेडनेस आ गई है. न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंपैरेटिवली कंडेंस है पिछले वाले सेल से बट स्टिल ओपन होने लगा है. वो इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट हैं. पिछले वाले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इनका साइज थोड़ा कम हो गया है. इनमें थोड़ा पॉलीक्रोमेजिया आ गया है, मतलब थोड़ी रेडनेस भी है और ब्लूनेस भी है. पॉलीक्रोमेजिया है, मल्टीपल कलर्स हैं. एज द हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग रेडनेस आ रही है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंस हो रही है ज़्यादा. वो आपके लेट एरिथ्रोब्लास्ट हैं, लेट नॉर्मोब्लास्ट हैं. तो इनमें रेड सेल लाइक साइटोप्लाज्म नहीं आ गया, हीमोग्लोबिनाइजेशन नहीं होगी और डार्क स्टेनिंग पिक्नोटिक न्यूक्लियाई है. द फर्स्ट फेंट ब्लश ऑफ HB वो किस में आ रहा है, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में. इंक्रीज क्रोमैटिक कंडेंसेशन भी आने लगती है और न्यूक्लियाई इसमें नहीं दिखते और न्यूक्लियस स्मॉल है और सेल भी कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. फिर साइटोप्लाज्म में फुली HB आ जाती है तो उसको हम ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं. स्मॉलेस्ट न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइटिक प्रिकर्सर है ये. और फिर उसके बाद पिक्नोटिक डिजेनरेशन हो जाती है और फिर हमारा रेटिकुलोसाइट बनता है. अब माइलॉइड सीरीज़ की तरफ जाएं बट स्पेसिफिकली सिर्फ अगर न्यूट्रोफिल्स को ही देखा जाए तो पहले हमारा माइलोब्लास्ट होता है, फिर प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म और फिर आपका मेच्योर WBC बनता है. ये अगेन न्यूट्रोफिल है और आपका मेच्योर न्यूट्रोफिल और हमारा बैंड फॉर्म सेल. फिर इधर वाली साइड पे आपको बेसोफिल दिख रहा है नीचे और ऊपर आपका एओसिनोफिल लग रहा है. ठीक है, बेसोफिल की जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कोर्स होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और ऑब्स्क्योर करती हैं न्यूक्लियस को कंपैरेटिवली. ऐसे ब्लू 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 डॉट डॉट दिखती हैं. मोनोसाइट नॉर्मल जो ब्लड हमारे WBCs होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट होता है और इसकी सबसे ज़्यादा डेलिकेट न्यूक्लियर क्रोमैटिन होती है और काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट ग्रे सा साइटोप्लाज्म है. वेक्यूलेशन भी मिल जाती है. अब ये जो WBC प्रिकर्सर्स हैं उनमें देखो सबसे पहले ब्लास्ट में आपको न्यूक्लियोलाई दिख रहे हैं. हाई NC रेशो है, कितनी ज़्यादा न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा है और न्यूक्लियोलाई भी हैं, फाइन क्रोमैटिन है और बेसोफिलिक से साइटोप्लाज्म है. इधर वाला जो सेल है वो आपका प्रोमाइलोसाइट है. कितनी कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं इसमें. न्यूक्लियर क्रोमैटिन फाइन ही होती है इसमें भी बट इसमें भी न्यूक्लियोलाई मिल भी सकते हैं. अब जो माइलोसाइट्स हैं उनमें भी ग्रैन्यूल्स आने लगे हैं सेकेंडरी वाले, उनमें न्यूक्लियर क्रोमैटिक कंडेंसेशन शुरू हो जाती है. जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं ना वो अर्ली माइलोसाइट्स में मिल जाते हैं बट वो धीरे धीरे माइलोसाइट की जैसे मेच्योरेशन होती रहती है वो लॉस हो जाता है. एक ऊपर जो ऊपर है वो एक बैंड न्यूट्रोफिल भी पड़ा है, ये बैंड सेल है और उसके इमीडिएटली जो साथ में पड़ा है ये जो रेड एरो से मार्क्ड है वो ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट है. इधर वाली साइड ये आपको मेटामाइलोसाइट दिख रहा है. न्यूक्लियर इंडेंटेशन कितनी क्लियर है, V शेप्ड. ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड है ये आपका मेटामाइलोसाइट्स है. इसमें क्रोमैटिन क्लम्पिंग भी होनी शुरू हो जाती है. नाउ अगेन बैंड फॉर्म है, ये तो मेच्योर न्यूक्लियस है, इसका क्रोमैटिन है पर सेगमेंटेशन नहीं हुई और फिर हमारा सेगमेंटेड तो मेच्योर न्यूट्रोफिल है जिसमें न्यूक्लियर लोब्स हैं जॉइंड बाय फाइन क्रोमैटिन फिलामेंट्स. ये आपका अब इओसिनोफिलिक वाले प्रिकर्सर्स भी कभी मिल सकते हैं. ये इओसिनोफिलिक वाला माइलोसाइट है, राउंड टू ओवल सा न्यूक्लियस है
और इओसिनोफिलिक की सेकेंडरी ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में है, और ये आपका मेच्योर इओसिनोफिल है। फिर मेच्योर इओसिनोफिल में क्या मिल रहा है? मेच्योर इओसिनोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस मिल रहा है एंड लार्ज इओसिनोफिलिक रेडिश टू ऑरेंज, गोल्डन भी बोल देती है देसी में, रेडिश टू ऑरेंज ग्रैन्यूल्स आपको मिल रहे हैं, लार्ज ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं। फिर आपका मेच्योर बेसोफिल है, इसमें डार्क ब्लू या पर्पलिश बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स मिलती हैं, डॉट 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 आपको मिलेंगी कोर्स ग्रैन्यूल्स जो कि ऑब्सक्योर करती हैं न्यूक्लियस को। फिर अगर मोनोसाइट के प्रिकर्सर्स की तरफ जाएं तो प्रोमोनोसाइट या लार्ज जो सेंटर में बड़ा सा सेल है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, कितने इसमें विजिबली न्यूक्लियर फोल्ड्स मिलते हैं, सेरिब्री फॉर्म कन्फिग्रेशन भी बोल देते हैं प्रोमोनोसाइट में। और बेसोफिलिक से साइटोप्लाज्म है, कितनी वेक्यूलेशन है, प्रोमोनोसाइट में वेक्यूलेशन मिलती है, इवन मेच्योर मोनोसाइट में भी वेक्यूलेशन तो मिलती है। ये आपका मेच्योर मोनोसाइट है, इसमें आपका इंडेंटेड न्यूक्लियस है, डेलिकेट सी क्रोमैटिन है, और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म तो है ही ग्रेइश सा। अब ये आपका मेगाकैरियोसाइट है जिसमें लार्ज लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है, कितना बड़ा सा सेल है। बोन मैरो में जब आप एग्जामिनेशन करते हो बोन मैरो का, तो सबसे पहले स्लाइड, जब आप बोन मैरो एस्पिरेट की स्लाइड जब आप देखते हो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे, तो 10x पे ही आपको बड़ा बड़ा सा एक सेल दिखने लगेगा, तो वो आपका मेगाकैरियोसाइट है। मेगाकैरियोसाइट आप 10x पे ही देख सकते हो। मेगाकैरियोसाइट का होना इंडिकेट करता है कि ये बोन मैरो हेमेटोपोइटिक है, दैट मीन्स इट इज सिंथेसाइजिंग सारे ब्लड सेल्स। मेगाकैरियोसाइट है विद अ लार्ज लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस एंड अबंडेंट ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद ये देखो स्मॉल लिम्फोसाइट्स है, एनसी रेशो स्मॉल लिम्फोसाइट की बड़ी होती है, कंडेंस्ड क्रोमैटिन होती है, बहुत छोटा सा रिम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। फिर आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, अबंडेंट बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, और पेरी न्यूक्लियर गोल्जी जोन भी होता है, क्लियरिंग होती है पेरी न्यूक्लियर वो गोल्जी जोन की वजह से। बाद एटिपिकल जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ये रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं, लार्ज न्यूक्लियर हो जाता है, फाइन क्रोमैटिन ऐसे। लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है उसकी स्केलपिंग हो गई है आरबीसीज के साथ एडजस्ट होके, तो ये रिएक्टिव लिम्फोसाइट होता है यूजली। तो लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स भी है जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मिल जाती हैं। So this was all about basics of hematopoiesis, नॉर्मल हेमेटोपोइसिस कहाँ हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से वीक्स में, कहाँ कौन से प्रोजेनिटर से कौन से सेल्स बन रहे हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड, और फिर जो मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर्स हैं उनकी भी डिटेल में थोड़ा मैंने बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल इनफ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।